Good afternoon, everyone. Welcome to the first of the series of Gender Talks, G Talks. I am Madhubanti Sen, your host for today. This talk is being hosted by the India Greens Party Women's Network, and I am the convener of IGPWN. I would like to say a few words topic before we move ahead. The topic for today is very enraging one, I must say. The Delhi rape case, gender in caste and sexual violence. The Delhi rape case of a 9-year-old Dalit girl has once again brought into limelight the rape culture of India intertwined with upper caste politics. Why India has developed the rape culture and why is it not being condemned by the mainstream media is something which we must ask. Why this atrocity? So today we will be talking about the atrocities with women in our society. We are very lucky to have with us Ms. Shobha Prabhakar and Ms. Alpiyush Singh as speakers. Alpiyush Singh will also moderate the session today. Ms. Shobha Prabhakar is an advocate and legal consultant and is currently practicing at Rajasthan High Court, Jodhpur. She graduated from National Law University, Gandhinagar, and has vast experience of working for retail and FMCG corp. Ms. Shobha, along with interest in academics, was an active participant and member of the theatre club. During the course of her engagement with theatre and its allied activities, she realized that it is a powerful, very powerful medium for interaction with common people and bring possible social change. Since her university days, she performs street and stage plays and is actively engaged in addressing socio-political issues through her writing and community involvement. Ms. Alpiyush Singh is a journalist, documentary maker, and activist. Ms. Alpiyush Singh, along with her interest in the field of news, is an active participant in social change discourses. She actively participates in dialogues relating to gender empowerment. She is actively involved with the concerns of marginalized sections of society and has been contributing towards bringing the gender-related issue on surface. Thank you so much for taking out time from your busy schedules and joining us to speak on this issue. I also thank the audience for being a part of this talk right now. I will hand over the session to Ms. Alpiyush Singh. Thank you. Thank you, Madhubanti. Before we begin a discussion on this very sensitive topic, I would like to quote B.R. Ambedkar. He once said, "Women, irrespective of the caste, particularly suffered most from the denial of rights. In this sequence of graded inequality, the untouchable women suffered most." Now, let me just tell you about the chain of events here. A 9-year-old girl in Delhi went to the nearby crematorium but never returned. The priest of the crematorium, Shamshan Ghat, as we say, Radhe Sham, with 2-3 other people, called the mother. They show her the girl's body, say that she got electrocuted while drinking the water from water cooler and hence died. Mother says she saw the injury marks on her wrist, girl's wrist and elbow, and her lips were blue. The priest asked the mother not to call the police. They say that police will do a post-mortem and that will lead to the selling of organs of the girls. The girl was cremated without the mother's consent. Here the important point is, in an interview and in her statement also, the mother says one thing about this. She says, these upper class people don't talk to me. We are Dalits, untouchables. Why did they want to cremate my daughter's body so hurriedly? What was the hurry? I think this is the question that we are going to center, going to have as a center in this debate and in this discussion. The caste dynamic, the angle of caste. I will ask each one of you, and I'll begin with Shobha. What do you think of the caste angle and dynamic that we see here and observe in this particular case? बात ये है कि ऑलरेडी हम इस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ विमेन जो है एक दूसरे जब इसकी बात करते हैं, हम जेंडर की जो बात करते हैं, तो वी आर ऑलरेडी द सेकंड सेक्स. इसमें कोई दो राय, कोई शक नहीं है और ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है. जिस तरह अब LGBT कम्युनिटी को की रिकग्निशन दे दी गई है, लेकिन जिस तरह उन्हें थर्ड जेंडर कहा जाता है वैसे हमें सेकंड जेंडर कहा जाता है. अब ये तो है ही अपने आप में, मतलब इसकी तरह के चैलेंजेस हैं. अब इस पर भी इफ अ वुमन कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड जो सोसाइटी की जो हायरार्की है उसमें सबसे निचले तबके से यदि कोई महिला आती है
तो उसके जो चैलेंजेस हैं और उसके जो सर्वाइवल इश्यूज है वो अनडाउटेडली उन महिलाओं से ज्यादा है। ये भी देखने वाली बात है कि जो अपर कास्ट विमेन भी यदि है वो इस तरह की घटनाएं या इस तरह की क्राइम्स का शिकार होती है, विक्टिम वो भी है, इक्वली विक्टिम वो भी है। लेकिन यहाँ पे ये जो बात जैसे एलपी ने अभी कोट करी कि उनका जो क्रीमेटोरियम से पहले जो विक्टिम की माँ ने ये कहा कि हम तो अनटचेबल है, ये जो अंदर से आपकी एक फियर है या एक इनसिक्योरिटी है दैट वी माइट नॉट बी टेकन सीरियसली और वी विल श्योरली नॉट बी टेकन सीरियसली। सो इफ वी आर गोइंग टू रेज आवर वॉइस, so there is always a fear inside, what if our voices do not reach, or even if they reach they could be neglected। तो मुझे ऐसा पर्सनली ये लगता है, ये जो बात है कि ये एक अंदर से कहाँ से आता है, ये कोई मैंने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं है, या पढ़ते तो हम इसके ठीक विपरीत हैं कि सब कुछ बराबर है, जेंडर इक्वालिटी है और सोसाइटी में सब बराबर है, या आपकी जो कानून भी हमारा सबको एक ही समान देखता है। लेकिन ये सारी जो बातें हैं ये एक तरह से बुकिश साउंड करती है जब हम रियलिटी में जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी में चीजें बिल्कुल अलग हो जाती है। और रही ये जो कास्ट एंगल की जो बात है, अब रेप जैसे कि हम पिछले इतने इंसिडेंट्स हम देखते आ रहे हैं, मतलब इस तरह की घटनाएं मतलब रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसके पहले ठीक इसी तरह का इंसिडेंट जो हाथरस में हमने देखा, और उसके बाद जिस तरह का हंगामा हुआ, जिस तरह वो हाईलाइट हुआ, वहां पे भी सेम तरह की घटना थी, दलित गर्ल वॉज रेप। तो ये जो कास्ट एंगल है, ये प्रोग्रेसिव विचारधारा वाले या जिस भी तरह की सोसाइटी में अब हम रह रहे हैं या अब हम एम्पावर्ड हो गए हैं, जो भी आप हम देखते हैं, जिस तरह का प्रोफेशन हम जिस तरह के प्रोफेशन में है, जिस तरह की सोसाइटी में हम देखते हैं, ये सुनने में अखर लगता है, लेकिन ये एक कास्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपका जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की आखिरी जो 2019 की रिपोर्ट है, ये आप देखेंगे। अच्छा 2018 से 19 ही नहीं, 2016 से 17 में भी अगर आप कंपेयर करने जाएंगे तो यू विल फाइंड एक अलार्मिंग राइज इन द क्राइम अगेंस्ट पीपल ऑफ SC/ST है। उसमें भी देयर इज एन अलार्मिंग राइज ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन है। अगर हम समीकरणों पे ना जाए कि कौन कौन से क्राइम, तब भी ये इनफ है ये कहना और ये मानना दैट विमेन आर नॉट सेफ। लाइक जो जिस तरह का रेप मतलब कल्चर कहना पड़ रहा है, आप सोचिए कि इसका मतलब ये जो कंट्री है, ये जो सोसाइटी है, इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। कास्ट तो एक रोल प्लेयर यहाँ है ही। अब ये भी देखने वाली बात है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए क्या हो रहा है। खैर इस पे हम आगे जो जैसे डिस्कशन इवॉल्व होगा तब हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल। बट आई टोटली अग्री विद व्हाट यू हैड सेड इन द बिगिनिंग कि क्या कास्ट डायनामिक यहाँ काम करता है, क्या यहाँ कास्ट का, क्योंकि रेप करना केवल सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को फुलफिल करना नहीं है, इट इज द डिस्प्ले ऑफ पावर एज वेल। एंड डिस्प्ले ऑफ पावर सिर्फ ये नहीं दैट आई एम मेल एंड यू आर फीमेल, ऑल्सो दैट आई कम फ्रॉम अ सर्टेन पोजिशन इन अ सोसाइटी जहाँ पर आई विल डोमिनेट यू एंड आई एम इन द पोजिशन एंड आई कैन डोमिनेट यू। अभी हम हरप्रीत जी से पूछेंगे, बहुत दलितों पे इन्होंने काम किया है, अनटचेबल्स पे काम किया है और बहुत इंटरेस्ट रखती हैं इस विषय पे। जो मदर ने जो अपनी बात कही कि उसी से पूरा दर्द जो है वो पता चल जाता है कि आप हमें अनटचेबल समझते हैं, आप समझते हैं आप हमसे दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन जहां तक बात आती है बच्ची की बॉडी को क्रिमेट करने का तो एकदम से जल्दबाजी दिखाई, ऐसा मदर के स्टेटमेंट में है और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा है इंडियन एक्सप्रेस के। तो ये जो उनका दर्द है समाज में हाशिए पर रहना और उसके बाद इस तरह की एट्रोसिटी का सामना करना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मेरा नमस्कार और मेरा नाम हरप्रीत कौर है, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ और इंडिया ग्रीन्स पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में मेंबर हूँ। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है विमेन नेटवर्क में काम करने का। अभी जो आपने बोला ये सारी चीजें, तो ये बहुत ही पेनफुल है। तो मेरा इस चीज से बहुत क्लोज का नाता रहा है। जैसे मैंने काफी स्टेट घूमे हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। तो विमेन की मैं बहुत छोटी एज में बहुत कम काम किया, लेकिन जितना काम किया मैंने, जितना समझ में मुझे आया, ये बहुत ही निराशाजनक जो बातें हैं ये हो रही है समाज में। तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? इसको देखना ही पड़ेगा क्योंकि इंसान है, दलित है, अगर वो भी तो इंसान है, अपर कास्ट है तो वो भी इंसान है। कास्ट का यहाँ पे तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों हो रहा है? आज हम लोग 20% के निकले जा रहे हैं
तब भी ये अगर चीजें हो रही है तो इसको किस तरह से मतलब हम लोग शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जहाँ तक ये बच्ची की बात आ रही है तो इसका तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ ही है, क्योंकि बच्ची को जलाना तो कहीं का भी नहीं है, सही नहीं पे हो रहा है जो भी हुआ। इसके पहले उन्नाव का हुआ, उसमें भी कितने सारे उस लड़की के मतलब रिश्तेदारों को मार दिया गया, जो मीडिया में दिखाया गया। और उसके बाद फिर हाथरस का हुआ, हाथरस वाली बच्ची को भी जिंदा जला दिया गया। तो ये कहाँ की इंसानियत है? मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी घटनाएं देश में हो क्यों रही है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी बोलती हैं, सोशल जो मंच है वो भी बोलते हैं कि यहाँ पे देश में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये चीजें जब सामने आती तो बहुत ज्यादा पेन होता ही है। इससे हम लोगों को मिलके कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा सब लोगों को, क्योंकि एक मंच पे आके बात रखना होगा जो ये चीजें समाज से बुराइयां खत्म हो सके। विमेंस के लिए एक्ट बने हुए नहीं है, विमेंस के लिए बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, लेकिन उस पर काम क्यों नहीं हो रहा? तो काम करने के बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम लोग किस तरह से इसको को देख सकते हैं। शुरू से लेकर ही जब बच्ची एक पैदा होती है, पहले तो उसको आधी से ज्यादा बच्चियों को तो पैदा होने का श्राप होता है, मतलब पैदा होती है तभी उनको बहुत दुख झेलना पड़ता है। उसके बाद फिर थोड़ी बड़ी होती है तो उसको अपने पिताजी का सुनना पड़ता है, फिर बड़ी होती है फिर भाई का सुनना पड़ता है, उसके बाद एक पति का सुनना पड़ता है, उसके बाद एक बेटी का सुनना पड़ता है। तो औरतों के साथ ही ये क्यों हो रहा है? तो मुझे ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू लगती है, इस पे बात होना चाहिए और बहुत स्ट्रांगली बात होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने आज एक मीटिंग किया उसको छोड़ दिया। जो जो एक्ट बने हुए तो उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, उस पे काम करने की जरूरत है। क्यों नहीं इन लोगों को जो क्राइम करते हैं इस तरह का, पहले रेप करते हैं बच्चे के साथ, सबसे बड़ी दुर्घटना है, उसके बाद रेप किया, उसके बाद मार भी दिया, मार के उसको जिंदा जला भी दिया। इतनी क्रूरता कोई कैसे दिखा सकता है? एक स्ट्रॉन्ग तरीके से महिलाओं को बात अपनी रखनी चाहिए। यही है, मैं उत्तर प्रदेश में गई, उत्तर प्रदेश में आज हम लोग अगर मैं बात करूं 2017 की, मुझे नहीं पता था कास्ट सिस्टम क्या होता है। मेरे साथ एक लड़की थी तो मैंने उसको पूछा, मई जून के महीने में लड़कियां मतलब लेडीज अपने पैरों की चप्पल अपने हाथ में उठा के वो लोग जा रहे हैं गली से। तो मैं पूछा उनको कि दीदी ये क्या है, मतलब मैं ये अपना एक्सपीरियंस साझा कर दिया आपके साथ दलित कम्युनिटी का। तो उन्होंने बोला कि आपको पता नहीं है, ये अपर कास्ट लोगों के घर है, इसीलिए ये लोग यहाँ से चप्पल उठा के जा रहे हैं हाथ में। तो ये आप सोचिए कि किस तरह का मतलब है। बच्चे की जहाँ तक बात आती है तो एक औरत बच्चा अपनी इच्छा से पैदा नहीं कर सकती है। अगर उनको उनके पति या उनके परिवार वाले बोले कि नहीं अभी हमको बच्चा चाहिए तो बच्चा चाहिए। क्योंकि मैंने मिनिस्ट्री के लिए, हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए काम किया, रिसर्च का काम किया हम लोगों ने, तो ये सारी चीजें उसमें निकल के सामने आई जो बहुत ही ज्यादा पेन देने वाले ये इश्यूज हैं। करना जरूरी है हम लोगों को। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी बात से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हरप्रीत ने जो है वो की हैं। शोभा, मैं एक चीज आपको पूछना चाहती हूँ, इसके बाद जो पुलिस का काम आता है उस पर बहुत सवाल उठते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में भी हम देखें तो परिवार वालों का ये कहना है कि उनकी एफआईआर जो है पहले रजिस्टर ही नहीं की गई और उनकी बच्ची के जो माता पिता हैं उनको डिटेन किया गया इलीगली। एक तो उनकी बच्ची की इस तरह से अपराध हुआ और उसके बाद उनको डिटेन किया गया। तो जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कम्युनिटी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। इसके साथ साथ इनका कहना यह भी है कि पॉक्सो और SC/ST एक्ट जो है वो सेक्शंस जो है एफआईआर में दर्ज ही नहीं किए गए। इतने गंभीर जो धाराएं हैं वो लगाई ही नहीं गई। तो पुलिस का रोल जो है वो हाथरस पे भी जो है वो हाशिए पर रहा है, बहुत सवालों के घेरे पे रहा है। लड़की का जो अंतिम संस्कार है बिना पेरेंट्स की कंसेंट के कर दिया गया और रातों रात कर दिया गया। और इन सब को लेके कानून की दृष्टि से आप कैसे इसको देखती हैं कि पुलिस का रोल जो है वो कितना ड्यूबियस है और जुडिशरी का इसके साथ क्या कोरिलेशन है? तो आपने बिल्कुल सही बात पॉइंट आउट करी है, न सिर्फ इस केस में जबकि पिछले केस में जो आपका ये हाथरस का मैटर था, चाहे वो उन्नाव रेप केस था, उसमें पुलिस का ड्यूबियस रोल देखने में आया है, खास करके एफआईआर रजिस्टर की। सारा आपका जो क्रिमिनल प्रोसीजर है शुरू ही एफआईआर से होता है और एफआईआर लॉज करने में एक रिलक्टेंस देखी गई है। और अच्छा, फिर ये जो हाथरस वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद बिल्कुल ठीक इसके बाद सेंटर ने, अगर आपको याद हो तो सेंटर ने एक फ्रेश एडवाइजरी इशू करी थी स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, ये कहते हुए कि ये जो इस तरह के मामले हैं, खास करके क्राइम अगेंस्ट वुमेन और खास करके क्राइम अगेंस्ट वुमेन में भी जो रेप के इश्यूज हैं, रेप केसेस हैं,
उनकी प्रोब, उनकी जांच, उनकी इन्वेस्टिगेशन 2 महीने के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। और एक ये भी कहा गया था कि जो विक्टिम का जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो डिस्कार्डेड नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात ये कही थी कि आपका ये जो एफआईआर को आप कंपल्सरीली रजिस्टर करेंगे जहां कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है। और केवल इतना ही नहीं, ये तो मैंने बात की कि जो सेंटर ने जो फ्रेश एडवाइजरी इशू करी थी, आप देखेंगे एक ललिता कुमारी केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट था कि कोई भी एफआईआर, रेप केस नहीं, कोई भी एफआईआर जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस जहां डिस्क्लोज होता है वहां पे एफआईआर करना कंपल्सरीली रजिस्टर किया जाना चाहिए। अच्छा, और ये अब ये स्पेशली आफ्टर द हाथरस इंसिडेंट ये मैंडेटरी एक्शन पुलिस को लेना है। अब पुलिस क्यों नहीं कर रही है? क्या पुलिस के ऊपर दबाव है? क्या पुलिस को किसी चीज का डर है? या पुलिस क्यों नहीं कर रही है? इसमें तो हम नहीं जा सकते हैं कि पुलिस ऐसा इस तरह की जो क्या कहते हैं इन एक्शन क्यों ले रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर देखने में सामने आया। लेकिन अच्छा, एक और बात जो इम्पोर्टेंट ये है कि मोस्टली क्या होता है, ये जो इस तरह के जो रेप इंसिडेंट्स है या विमेन, ये क्राइम अगेंस्ट विमेन है, इसके बाद हम कोशिश करते हैं इस पे डिस्कशन करने की या डिबेट करने की या चर्चा करने की या उसे एनालाइज करने की कि प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम कुड, व्हाई द क्राइम कुड नॉट बी प्रिवेंटेड। और यहाँ आता है आपका पुलिस का रोल। एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ रही है कि जब निर्भया केस जब आया था, तो निर्भया केस होने के बाद भी जो जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी 2013 में जो हमें इतने सारे अमेंडमेंट्स देखने में सामने आए, अमेंडमेंट्स हुए और उस कमेटी के कई सारे रिकमेंडेशंस थे, उसमें बहुत सारी ऐसे सजेशंस थे जो इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए थे, जिससे हम जो हमारा जो कॉन्वर्जेशन का फोकस है वो मतलब इंसिडेंट होने से पहले हमें करना चाहिए। लेकिन हम ये शायद वी आर कंपेल्ड, वी आर बाउंड कि अब हो जाता है, अब उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं। मतलब हाउ आयरॉनिकल। तो जो मैं भटक रही हूँ बात बोलते बोलते, जो जे.एस. वर्मा कमेटी में एक रिकमेंडेशन ये भी था कि आपका जो प्रेजेंट स्ट्रीट कल्चर है, इट इज एंटी विमेन, वी मस्ट एक्नॉलेज इट, कि जो आपको चाहिए कि एक बेटरमेंट ऑफ पुलिस सिस्टम की तो जरूरत है ही, ठीक है। और इसके साथ साथ ये चाहिए कि जो स्ट्रीट्स हैं, जो प्रॉपर स्ट्रीट लाइटिंग होनी चाहिए, स्ट्रीट कल्चर ऐसा होना चाहिए जो कि फीमेल फ्रेंडली हो। ऐसे एरियाज मैप करने चाहिए जो कि सुने हैं, ठीक है, ताकि अब प्रिवेंशन ऑफ क्राइम कैसे होता है, पुलिस घर घर तो जाएगी नहीं, पुलिस 100 नंबर डायल करने का लेकिन बहुत सारे क्राइम तो घरों के अंदर ही होते हैं। और एग्जैक्टली फेमिलियर इंडिविजुअल्स भी करते हैं, तो बहुत सारे तो पिक्चर में ही नहीं आते हैं। मोस्ट ऑफ देम डू नॉट मेक इट टू द स्टैटिस्टिक, ठीक है। इसी पॉइंट से सॉरी आपको मैंने डिस्टर्ब किया, लेकिन आपने एक बेहद इम्पोर्टेंट सवाल जो आपने बीच में किया वो ये था कि पुलिस अपना रोल क्यों नहीं करती है। तो क्या पुलिस को भी हमें सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है? मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ। आप सब लोगों को मालूम होगा 1992 में भवरी देवी केस था और उसके ट्रायल जज ने एक बात कही थी अपने वर्डिक्ट में, उन्होंने कमेंट किया था और वो कमेंट ये था कि एन अपर कास्ट मैन कुड नॉट हैव डिफाइड हिमसेल्फ बाय रेपिंग अ लोअर कास्ट वुमन, राइट? सो द थिंग इज this comment was made by a judge, not a layman, right? तो कहने का मतलब ये है कि जुडिशरी, पुलिस, सब लोग जो है वो समाज से आते हैं। और इसी एंगल को देखते हुए मैं अनीता जी से एक बार एक चीज पूछना चाहती हूँ कि पुलिस और जुडिशरी भी जो है वो एक समाज का हिस्सा है और उनकी जो उनकी जो कंडीशनिंग है, उनकी जो सोच है, वो कहीं ना कहीं उनके फैसलों में, उनकी कार्यप्रणाली में, उनकी फंक्शनिंग में जाहिर होती है, रिफ्लेक्ट होती है। इस बात को लेके वो क्या कहना चाहिए? ओके, मधुवंती, डू यू हैव समथिंग टू से टू दैट वी हैव टू सी दिस होल वी हैव टू सी these sexual assault crimes in a social context? Would you like to add something? Definitely. This has to be seen from a social context. And since you have asked me this, I would like to say here one thing. One of the sociologists, while studying Indian society, said once, to understand Indian society, one needs to understand the caste system, the caste dynamics that are so the caste politics that are so intertwined and deeply rooted that you cannot ignore at any cost. Like Shobha ji said,
it's all interconnected and very much a part of the social context, because when we are talking about the victim, we have to definitely see it, how it is affecting the social institutions, the people, the social actors. It's all very much interlinked. So to the caste dynamics, to understand why this rape culture is still so prevalent in India, one has to focus on the caste system, the upper caste, the lower caste, the constant looking down upon the lower caste, and this show of violence on the lower caste women, the marginalized sections of women, they have to suffer so much more. I mean, you cannot compare, of course, the amount of violence that goes on with women, but then the violence that happens with the lower caste women is something which has to be looked from a very like micro level, and it has to be studied at all context. So yes, it is very much a part of the social dynamic, social scenario, you might say. So we come to the next part of the talk. I would like to say here that even there's a difference in how masses and media reacts to cases against Dalits and non-Dalits. For example, when we talk about Priyanka Reddy and Nirbhaya case, which were non-Dalit cases, and we saw a lot of outrage. But in 2014, when Badaयूं case happened, it didn't get that much of public attention. So, what do you think about that, Shobha? Do you feel there's a difference when it comes to the reaction of society and media in that regard? Well, you're right in saying that जो प्रियंका रेड्डी जो हैदराबाद रेप के पॉइंट मुझे करना यहाँ पे पॉइंट आउट करना है that we are not supposed to take the name of the victim. So oh yes, I agree to that. Yes, it's okay. तो हैदराबाद जो रेप केस था उसके पहले निर्भया कांड भी जो हुआ, तो ये उस वक्त एक तरह की वो नेशनल इमरजेंसी वाली सिचुएशन और एक नेशनल लेवल का एक आउटरीच बन गया था, ठीक है। और मीडिया में आप क्योंकि ज्यादा हो तो शायद इस पर बेहतर कमेंट आप दे सकते हो, बट फिर भी ये मुझे ऐसा लगता है कि विद टाइम मैं ये देख रही हूँ कि मीडिया अगर उसको मेन स्ट्रीम मीडिया अगर उसको नहीं भी अगर कर रही है और इसका जो आउटरीच है, अब वो लोकल लोग या फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे जो संगठन हैं या छात्र संगठन हैं, कम से कम वो सड़कों पर उतरते हैं, सो पीपल गेट टू नो। तो मैं ये बिल्कुल इससे ये नहीं कहूंगी कि मतलब जो है मीडिया जो है इसको वो कर रही है, साइडलाइन कर दे रही है इन इश्यूज को। विद टाइम ये देखने में मिला है कि पीपल आर बिकमिंग अवेयर, पीपल आर गेटिंग अवेयर कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप अपर कास्ट हैं या लोअर कास्ट हैं, दिस इज समथिंग जो कोई डिजर्व नहीं करता है और ये किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। आई थिंक पीपल आर गेटिंग अवेयर दीज डेज पिछले कुछ समय से। हाँ, ये जरूर ये कंपैरिजन जरूर देखने में आता है कि हैदराबाद वाला जो केस था उसमें आप देख लीजिए, मतलब अब हम उसकी जो एक्यूज पर्सन थे उनका एनकाउंटर हो गया, उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, लेकिन वो जिस तरह वो सेलिब्रेट हुआ, बट आई पर्सनली बिलीव कि वो सेलिब्रेशन वाज अनकॉल्ड फॉर एंड एनकाउंट, मतलब उनको पूरा ट्रायल फेस करना चाहिए था, उनको एक जो प्रोसीजर है वो फॉलो होना चाहिए था। तमाम बातें हैं उसमें ना पढ़ते हुए जिस तरह वो सेलिब्रेट किया गया था और जिस तरह वो उनका एनकाउंटर सेलिब्रेट किया गया था या उसके पहले जिस तरह एक नेशनल आउटरीच देखा गया था निर्भया में, तो खैर जो भी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे अपर कास्ट विक्टिम हो या लोअर कास्ट विक्टिम हो, अगर उसकी वजह से कोई चीज ट्रिगर कर रही है, फॉर एग्जाम्पल निर्भया कांड में निर्भया वाला जो रेप केस था उसके अंदर जिस तरह का गुस्सा, जिस तरह का हमने देखा, मतलब हम सब अपने घरों में शायद ऐसा सोच रहे थे कि यार एज इफ शी इज आवर फैमिली मेंबर, मतलब इस तरह का हमने, मतलब ये इतना इमोशनल हम सबको ये अफेक्ट किया गया था। तो जो भी है, इवन इफ शी वाज एन अपर कास्ट, तो उसकी वजह से काफी कुछ ट्रिगर किया, उसकी वजह से अमेंडमेंट्स आए, उसकी वजह से एक चैलेंज मिला, जुडिशरी को भी चैलेंज मिला कि नाउ देयर इज अ नीड
of overhauling the entire criminal justice system in such a manner कि अब इस तरह की कोई घटना दोबारा ना हो, और अगर हो तो उसे कैसे टैकल किया जा सके, और क्या हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है किस तरह काम करनी चाहिए, किस तरह फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह का इन्वेस्टिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह की मैपिंग होनी चाहिए, पेट्रोलिंग होनी चाहिए, स्ट्रीट कल्चर विमेन फ्रेंडली होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी और हम लोगों ने जो जिनकी जरूरत थी तो वो देखी। मतलब एक ये शायद मेरे पास अप्रोप्रिएट फ्रेज नहीं है उसको पुट अप करने के लिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन उसकी वजह से ये सारी बातें हुई। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसे बेहतर बनाने के लिए हम एक और इंसिडेंट का एग्जैक्टली आपने बताया कि जुडिशरी ने इंटरवीन किया और कई सारी चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होनी चाहिए, फोरेंसिक से लेके पुलिस को किस तरह से काम करना चाहिए, लेकिन इसमें मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहती हूँ कि किस तरह से होता है। तो हाथरस वाले केस में जो यूपी के एडीजी उस वक्त थे, उन्होंने ये कहा था कि वी कैन नॉट एस्टेब्लिश दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट एज रेप क्योंकि देयर वाज नो सीमेन फाउंड इन द बॉडी ऑफ द विक्टिम। और जबकि उनको ये नहीं मालूम है कि 2013 में ही जो है ये कानून बदला जा चुका है, और 1994 में यूपी वर्सेस बाबूनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि आप पेनिट्रेशन का अटेम्प्ट भी जो है वो रेप की परिभाषा में आता है। तो जब इन्वेस्टिगेशन इस तरह से होगी, पुलिस इस तरह से इल इन्फॉर्म्ड होगी, किस तरह से तो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी इसमें? कैसे इल इन्फॉर्म्ड से भी ज्यादा हो सकता है, मान लें कि इल इन्फॉर्म्ड नहीं है या मिस इन्फॉर्म्ड नहीं है, उससे भी ज्यादा जैसे कि हम पहले शुरू में बात कर रहे थे सोशल कॉन्टेक्स्ट भी। आप जब पुलिस वाले, अब मान लीजिए अपर कास्ट है, अभी हाथरस में तो खैर दलित लड़की का ही रेप हुआ था, तो बिल्कुल ये सारे प्रेजुडिसेस सामने आते हैं और क्यों ना जज किया जाए। अगर आप ऐसी वाहियात बातें करते हुए नजर आते हैं तो आप बिल्कुल जज किए जाएंगे कि आप क्यों साइड ले रहे हैं उन लोगों का। एक बात, दूसरी बात ये कि बहुत जरूरी है पुलिस सिस्टम का बेटरमेंट होना, तो उसकी तो बहुत जरूरत है। साथ साथ ये भी जरूरत है कि जब प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में जो भी कैटेगरीज है, क्राइम अगेंस्ट विमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, उसके अंदर ये आपकी वन ऑफ दी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, तो वो नहीं है और तभी इस तरह की घटनाएं होती हैं। डेटा तो कुछ और ही कहता है। अगर आप एनसीआरबी का ही डेटा देखें 2018 से लेके और 2019 का, तो क्राइम अगेंस्ट विमेन में अगर आप देखें तो देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 7.3% फ्रॉम 2019, लाइक फ्रॉम 2018 to 2019, राइट। When we talk about crime against children, तो उसमें इंक्रीज था 4.5% का। और अगर हम शेड्यूल कास्ट और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, तो उसमें 7.3% का इंक्रीज था एक ही साल में, फ्रॉम 2018 to 2019। इवन आप ये भी देखेंगे, बस इतना ऐड कर लूं, हाँ, कि ये भी देखेंगे कि क्राइम अगेंस्ट विमेन ऑफ रेप ऑफ विमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, इसमें भी आप इंक्रीज पाएंगे। हाँ, इंक्रीज है उसमें, ठीक है। अच्छा, तो मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ। आप कह रहे हो ना कि मतलब डेटा कुछ और कहते हैं। देखिए, मैं आई एम नॉट डिनाइंग दिस, इनफैक्ट आई एम सपोर्टिंग योर आर्ग्यूमेंट। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो प्रिवेंशन ऑफ जो क्राइम, जो एक वन ऑफ द ड्यूटीज है पुलिस की, अभी पुलिस सिस्टम का बेटरमेंट हो, इसकी तो जरूरत है ही। साथ ही ये देखना है कि ये उनकी प्रायोरिटी में भी हो, ये उनकी प्रायोरिटी होना चाहिए। मेरे मतलब ये है कहने का कि ये उनकी प्रायोरिटी होना चाहिए कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन। अगर हम चाहते हैं कि एक विमेन फ्रेंडली कंट्री का सपना हम देखते हैं, तो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये पुलिस की प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड इट इज नॉट ओनली द स्ट्रिंजेंट लॉ और स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन और बेटर पुलिस सिस्टम which can solve this crisis. All the stakeholders should act together, come together and should act like come hand in hand. जैसे कि आप इसमें लेजिस्लेटर्स को काउंट कर सकते हैं, लॉ मेकर लेजिस्लेटर्स को काउंट कीजिए, पुलिस सिस्टम तो खैर है ही, प्रोसिक्यूटर्स, आपकी जुडिशरी,
आपके रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, एनजीओ का रोल यहाँ पर आता है, और प्रोसिक्यूटर्स का रोल यहाँ आता है, फोरेंसिक जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट्स है या मेडिकल हेल्थ जो सेक्टर्स हैं, ये सभी स्टेक होल्डर्स माने जाएंगे जब कोई भी क्राइम अगेंस्ट विमेन होता है। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स का व्यू, सारे स्टेक होल्डर्स की इस तरह की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये जो हमारा फोकस है, इट शुड मोर बी टुवर्ड्स प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, क्योंकि उसके बाद तो हम सब बात करते हैं। बात से एकदम सहमति है, बट चूंकि हम यहाँ पे थोड़ा कास्ट डायनेमिक्स और एंगल वाली बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अक्यूज जो है वो डोमिनेंट कास्ट के हैं, और समहाउ उनके सबकॉन्शियस में और इनडायरेक्टली भी ऑल्सो उनको ये लगता है कि वी इंजॉय द प्रॉक्सिमिटी एंड द सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी एंड पुलिस एंड द सिस्टम। इसमें एक एग्जाम्पल अगर आप ले सकते हो तो 2019 में जो अलवर गैंग रेप का अक्यूज था, उसने तो ये बोला था अपने स्टेटमेंट्स में कि व्हाट कैन आई डू टू अ दलित वुमन। यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स जस्ट नॉट द crime, sexual crime against women, it is sexual crime against this marginalized section of the society। और यहाँ पे मैं हरप्रीत से पूछना चाहूंगी, हरप्रीत, जो इस तरह की आरोपियों के मन में जो एक बेखौफ धारणा रहती है कि हम तो मतलब दबंग, हम देख लेंगे, सब हमारे साथ ही हैं, और देखा जाए तो पुलिस भी कई बार ऐसा लगता है कि उनके साथ है, ऐसा लगता है, ऐसा पीड़ित के परिवार वाले हाथरस में भी कह चुके हैं, दिल्ली वाले केस में भी कह चुके हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैम इसके बारे में मुझे यही कहना है क्योंकि हमारा सिस्टम जो है, कहीं ना कहीं सिस्टम की गलती हो रही है इसमें। दबंग है चाहे कोई भी है, मैं फिर से यहाँ पे अपनी बात को रिपीट करना चाहूंगी कि विमेन जो भी है उसके साथ पहली बात तो रेप होने ही नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो वो कास्ट के आधार पे ज्यादा हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश का रिसेंट है, किसी इलेक्शन में लेडीज के कपड़े फाड़े गए, साड़ी उतार दी गई उसकी, एक और किसी के घर पे घुसे, वो भी किसी शायद किसी दलित समाज से थी, पासी थे, ठीक है, उसके भी घर में घुस के वही सब किया गया, उसके भी कपड़े फाड़ दिए गए। तो ये कहाँ की मतलब समझदारी है? तो इसमें सिस्टम की भी गलती है। कोई भी बंदा अगर इस तरह का क्राइम करता है, वो चाहे दलित का हो चाहे अपर कास्ट का हो, ये होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई करता है तो उसको तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हर एक बंदा बोलता है कि मैं अपने मतलब लीडर को जेब में लेके घूमता हूँ, ठीक है। कोई पुलिस का जो है, पुलिस पे भी ब्लेम आते हैं इस चीज के, तो पुलिस को भी लोग बोलते हैं कि नहीं हम देख लेंगे जो भी होगा। तो इसमें मुझे यहाँ पे लगता है कि बहुत बड़ी काउंसलिंग की जरूरत है, लड़कों को तो खास करके जरूरत है। तो अगर अडल्ट जो लेडीज होती है उसको तो लोग बोलते हैं कि हाफ कपड़े पहने इन्होंने, ये किया इन्होंने कुछ छेड़ा होगा किसी को इस तरह का। लेकिन जो छोटे बच्चों के साथ ये घटनाएं, अनफॉर्चुनेट घटनाएं हो रही है, तो वो बच्चे तो किसी को कुछ नहीं बोलते। तो ये सारी चीजें जो है, मुझे लगता है इसलिए इसको जोड़ के देखा जाना चाहिए कहीं ना कहीं, कि सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो इसके बारे में सिस्टम तो है ही इसमें इन्वॉल्व। अगर किसी ने क्राइम किया है तो अभी ये जो दिल्ली में मैंने सुना था रेप कांड का, इसके बारे में यहाँ तक मुझे पता है कि लड़की के मम्मी पापा को थाने में बिठाया गया और उनके स्टेटमेंट चेंज करने के लिए कहा गया। तो क्यों कहा गया भैया, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। एक तो वो मतलब उनके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार किया गया, छोटे बच्चे की तो कोई गलती भी नहीं थी उसमें। तो दूसरा, उसको उसके मम्मी पापा को ही वो लोग क्रिमिनल समझ रहे हैं। 4-5 लोग जब इस तरह की घटनाएं करते हैं तो इससे बुरा क्या होगा हमारे देश के लिए। बिल्कुल, तो दूसरी साइड हम लोग देवियों को पूजते हैं, दुर्गा को पूजो, इसको पूजो, उसको पूजो। तो फिर ये बच्चों का क्या है, विमेन्स का क्या है, क्या इमेज है विमेन्स की, हम लोग क्या चाहते हैं? बिल्कुल, आपने सही बात कही। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ कि उसी इलाके में जून में 2 बहनों के साथ इसी तरह के एक सेक्सुअल असॉल्ट की खबरें सामने आई थी। ये राजधानी की बात है और वहां पे इस तरह की खबरें पहले भी आ चुकी है इस बच्चे से पहले। मूल सवाल जो हमने अपनी डिस्कशन की शुरुआत में किया था, मैं उसी पर फिर से आना चाहूंगी, और वो है एक माँ का सवाल, जो उसने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में कहा था कि वो मेरे बच्चे को, ये उसके
बयान में भी है और उन्होंने इंटरव्यू में भी इंडियन एक्सप्रेस को कहा था, बच्ची की माँ ने, कि जो प्रीस्ट राधे श्याम है वो बच्ची का क्रिमेशन करना चाहते थे जल्द से जल्द, और वो कहना चाहते वो कह रहे थे कि पोस्टमार्टम होगा और बच्ची के अंग जो है इधर उधर होंगे, उनको बेचा जा सकता है वगैरह वगैरह। माँ का सवाल ये था कि जो लोग हमसे अपर कास्ट लोग, जो हमें देखते तक नहीं, जो हमें कुछ समझते नहीं, जो हमसे बात नहीं करते, उनको मेरी बच्ची की इतनी चिंता क्यों थी। आई थिंक पूरे ये सवाल ऐसा है जो पूरे डिस्कशन के डिबेट में आपके डिस्कशन के बाद भी आपके जहन में जो है लिंगर ऑन करेगा, आप उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आई थिंक हमें सेशन को बहुत अच्छा फ्रूटफुल सेशन रहा। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी और उम्मीद करते हैं कि इस बच्ची को और उसकी जैसी 1000 बच्चियों को जो इंतजार है इंसाफ का, वो मिले और हमारी एक समझ बने कि ये जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं उनको हम आइसोलेशन में ना देखें, उनका एक सोशल कॉन्टेक्स्ट है और उसमें कास्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत शुक्रिया। यस एलपीयू, एक एंड नोट पे मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ये डिस्कशन कन्वर्सेशन हमें लगातार इसलिए भी करते रहने चाहिए ताकि हम फिर से मतलब एज आई सेड कि ये बहुत जरूरी है कि डिस्कशन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम को लेकर के होना चाहिए, रादर देन अब जो एक क्राइम हो गया है उसके बाद हम अगर उसमें एनालिसिस या तरह की समझ बनाते हुए या उसके समीकरणों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये इसलिए भी जरूरी है इस तरह के डिस्कशंस और कॉन्वर्सेशन, और ये जो बात हम कई और डिस्कशंस में भी कहते हैं, सुनते हैं कि विमेन इन नीड ऑफ विमेन, ठीक है, एंड if we as women and we as professional women will not talk about our rights, who else will? So this also needs to be noted down as well as emphasized upon कि बिना इस डर के कि शायद हम कॉर्नर हो जाए या बिना इस डर के कि हमें तमाम तरह के टैग्स हमारे सर पे लगा दिए जाए, बिना इस डर के हमें वी शुड कीप रेजिंग आवर वॉइसेस, वी शुड कीप टॉकिंग अबाउट आवर राइट्स, और वी शुड नॉट वेट फॉर जिनकी फर्दरेंस पे हम कोई डिस्कशन करें। हम चाहते हैं कि इस तरह की डिस्कशंस, इस तरह के डिबेट्स और होते रहें और एक साथ आते रहें और आसपास भी इस तरह की बातचीत होती रहे। तो thank you. Thank you, Ms. Shobha and Alpiu, for this wonderful and very enlightening session. At the same time, इस पे ऐसे topics पे बात करना तो जितना ज़्यादा करे उतना ही अच्छा है, to increase awareness. These kind of sessions are very important, and I would like to say that with every case that happens, be it the Nirbhaya case, for example, when it happened, we felt like, okay, this was the limit. इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता. And then something else happens, where the victim is killed, where the big family members of the victim are murdered, and then we feel that, okay, this is the limit, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. And then there's some other case, and it goes on. उससे भी ज़्यादा खराब होती है. उससे भी खराब, उससे भी भयंकर, and we keep thinking, we keep wondering कि will this ever end? And so very disheartening that महिलाएं कहाँ पहुंच गई है, लेकिन अभी तक they are seen as this, as a subject of, they are objectified in so many ways, and it's like a power play of the men over the women. So I just wish that this comes to an end, and looking towards a very positive outcome. It's going to take a lot of time, and we are still struggling, we are still fighting for it, but these things need to be talked about, as discussed as well. Yes. And in this context, I would like to say that it is so important for women to come up front, to speak, to raise their voice, because somewhere when these rape cases happen, एक जो वायलेंस, एक जो पावर दिखाते हैं औरतों के ऊपर कि तुम कुछ बोल नहीं सकती, this is the thing which happens, right? So what we should strive for is help women, support women, increase their confidence and bring them in front. And that is why we are having this training, gender equity training program, which is starting from tomorrow.
It's going to be a 4 days online training program for the Brihan Mumbai unit and Maharashtra State Ad Hoc Committee. It's a 4 days training program, and in this context, I would like to introduce our trainers, myself from Kolkata, and we have Harpreet from Punjab. She is the executive member in IGPWN. We have Nazima from Kerala. She is the deputy convener of IGPWN. We have our co-founder of IGP, Ms. Anita Nautiyal. She is also the International Gender Equity Trainer, Asia Pacific Greens Federation. I would request them to speak a few words for a minute. Maybe we don't have much time. Ms. Anita Nautiyal, can you please say a few things about the upcoming training program that we are having from tomorrow? जी धन्यवाद मधुबंती। अभी जब हमने शोभा से और अर्पियो से बात की और हरप्रीत और आपको भी सुना, तो इन सब बातों से बहुत क्लियर हो जाता है कि हमें ग्रीन पॉलिटिक्स तो 200% चाहिए हमारे भारत में, देश में, और बहुत स्ट्रांग तरीके से चाहिए। और जैसे कि हमारे जो पार्टी के जो को फाउंडर हैं सुरेश नौटियाल, जो उनका ड्रीम है कि 50% महिलाओं की भागीदारी हो पार्टी के अंदर और बहुत मजबूती से जो है पार्टी में महिलाएं अपना भागीदारी निभाएं। तो ये सब चीजें जब हम ये सब सुनते हैं और जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अंदर तक हमारी रूह कांप जाती है इन किस्सों को सुन के, और हम केवल बातचीत करने के अलावा हम और कुछ कर नहीं पाते हैं, तो फिर ये लगता है कि हम ग्रास रूट पर इस तरीके से काम करें और पार्टी को मजबूती दें और पार्टी में जो है मेंबरशिप बढ़े। तो ये जो जेंडर इक्विटी ट्रेनिंग है, ये जब महिलाओं से आप बात करते हैं कि आप जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए, तो महिलाएं कहती हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स हमारे लिए नहीं है, हमें नहीं आता है, हम क्या कर सकते हैं। तो जेंडर इक्विटी ट्रेनिंग जो है महिलाओं को ट्रेन करती है कि आप किस तरीके से पार्टी में आ सकते हैं और फिर पार्टी में काम कर सकते हैं। तो 2 तरह के काम होते हैं पार्टी में, एक होता है कि पार्टी बिल्डिंग का, और दूसरा होता है जैसे ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसके लिए लोग चाहिए बिल्ड करने के लिए, और दूसरा होता है कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। इनिशियली विमेन आके कहती हैं कि हम तो चलिए ठीक है, हमने पार्टी ज्वाइन कर ली, अब हमने अगर पार्टी को बिल्ड करना है तो हम क्या करेंगे, हम इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते। लेकिन ओवर द ईयर्स जब वो देखते हैं कि पार्टी में काम करते हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं, हम कभी इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। और ग्रीन पार्टीज पूरे विश्व में हैं, और जब हम उनके हिस्ट्री देखते हैं उन महिलाओं की, तो शुरू में उन्होंने हमारे एक मेंटोर भी हैं लिंडा, उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैंने इलेक्शन लड़ने के लिए मना कर दिया, कहते हैं, लेकिन जब और सीनियर लीडर्स ने बोला नहीं आप तो कर ही सकते हो, एंड वो जो है काउंसलर हैं और 3 बार लगातार काउंसलर रही हैं। तो इस तरीके के किस्से होते हैं। तो मुझे लगता है मैंने ज्यादा बोल दिया, सॉरी मधुबंती, ओवर टू यू। Thank you Anita ji. I would request Nazima to say a few words. Thank you Madhubandi for giving me this chance. Yes, green politics is the part of the solution for all these atrocities. I'm so happy to be among these powerful women. Only empowered women can empower women. So IGP paves a way for more women. So we are going to conduct this gender equity training. Let more women come into IGP, and future is green. Thank you. Thank you, Nazima. I would request Harpreet to say a few words. अभी जैसे हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत की है एट्रोसिटीज के बारे में, तो मुझे भी यही लगता है कि विमेन्स को सिर्फ बताने की जरूरत है। विमेन्स को अगर हम लोग बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, बिना किसी भेदभाव के बताएंगे, तो वो खुद ही खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। और ये सारे केसेस, चाहे वो अपर कास्ट पे हो रहा है, चाहे वो लोअर कास्ट पे हो रहा है, तो ये सारी चीजें फिर खुद खत्म हो जाएंगी अगर हम लोगों को पॉलिटिक्स में इस तरह की ट्रेनिंग देके लाया जा रहा है। सो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा हूँ,
So gender equity training most important है women के लिए. Thank you so much. Thank you, Harpreet. For the gender equity training program, we will have international speakers and trainers. They will be having sessions, and I believe that women are very much capable, and they have that drive in them to contribute in the world of politics. They just need that support, a bit of a push, a bit of training, and they are not just supposed to be a face in the political parties to show that there is women empowerment. They have it in them to take a lead and leadership position and clean politics. So we are looking forward to this training program, and we hope that we can contribute to the society by bringing more such strong women in the field of politics. I would like to thank Suresh Nautiyal ji, our president of India Greens Party, for his support, Rahul and Ishpriya for handling the technicalities, which I'm not very good at. But thank you so much. Thank you all, and for attending the session. Thank you, Ms. Shobha Prabhakar. Thank you, Ms. Alfiu Singh, Vidya ji, Sarika ji, for taking time out to hold this session. Deepak ji, thank you. Thank you for the session. Bye, everyone.